wanted to ask you, you've been offered, candidacy in elections before by the BJP and perhaps by other parties as well. By every party. Yeah. Why have you not joined any political party? Why have you not joined politics? Because I'm not interested in it. I'm not interested in, as an individual, as just a independent person. I think my voice is, to some people, to majority of people, a voice of a truth. But the moment I join a political party, then becomes that voice of that party. As it is, people say that your wife is in BJP and you are so and so of so and so prime minister. So that, but that is asides that. I have been offered since 20 years this ticket from various party, and it does not necessarily. अब शायद बड़े-बड़े लोग फोन करते हैं एक्टर्स को, but शुरुआत में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का कोई आपके पास आदमी आ जाएगा, जी थोड़े नाल चाय पीनी है या जो भी है, आपका क्या विचार है. दूसरा, जब मैं जब मेनका गांधी जी की पीलीभीत पर उनकी कैनवसिंग के लिए गया था, बिकॉज मुझे प्रीतिश ने कहा था कि यार वो दिलीप साहब भी जा रहे हैं, तुम भी चल, कर्मा साथ में रिलीज हुई है, तो हम पीलीभीत में करोड़ों की जनता देखने आती थी हमारा वो रैली, और हमको बोलना होता था कि मेनका जी बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह, जो भी डायलॉग सुनाना होता था मुझे. दैट इज द ओनली इलेक्शन शी इज लॉस्ट. So my point is that ऐसा नहीं है कि जिस दिन मुझे ज्वाइन करना होगा, I will do it on a डंके की चोट, because I will need people to sort of help me. I will need people, but I don't. The fact that I went to America was that there is an actor in me, there's a creative person in me who's much more dominating than the person in me who wants to be a politician. But what about Kashmir, Anukamji? Don't you feel that Kashmir needs a leader who can actually represent the pundits who are not represented politically? Not much in any case. Everybody in the government represents Kashmir now. The abrogation of Article 370 has been done by this government. So they are much more capable leaders for Kashmir than I would have been, or I can be. I'm a voice, and my voice I have used at every platform to talk on behalf of Kashmiri Pandits. It was important, and it's important. I always said it, that the only way to solve the problem of Kashmiri Pandits is the abrogation of Article 370, because the moment you allow the rest of the people from India, it will settle down a situation, and that is what has happened. Historical. Abrogation of Article 370 was in the Jansangh agenda, for RSS agenda. Everybody, they have done it, well done. 35 years, have khatam kar diya. But don't you think that what the promises they were making for the last 20 years, हम कश्मीरी पंडित को वापस ले जाएंगे और rehabilitate कर देंगे. Kaveri, of course, is against Kashmiri Pandit going back there. But, I'm just joking for you. And he's on the other side. But लगता नहीं है ये इस गवर्नमेंट के अंदर वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि कश्मीरी पंडित कोई बड़ी संख्या में अपने घर को वापस ले सकेंगे. अभी तक तो कोई जाता दिखाई देता नहीं. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. मैं आपका सवाल समझ गया. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो आइडियल सिचुएशन होती है. अरे प्रभु जी इंडिया टुडे में अच्छे थे, कावेरी जी इंडिया टुडे में अच्छी थी, आज क्यों इस न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आ गए, वहां पर बेटर रहते. तो ऐसे बोलने वाले आप सबकी बात थोड़ा सुनते हो. बात करना तो कौन है कश्मीरी पंडित? आपने बात करना जो है ना वो आसान है, कि हर जो टिप्पणी करना जो एक बात है, और एक्चुअली 60 साल के बाद ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग. कानून के ऊपर कोई बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित कब जाएंगे या जा पाएंगे? जब आप लोग लेके जा लोगे, जब आप और कावेरी वहां पर अपना घर बनाओगे, हम चलेंगे. कश्मीरी पंडित कोई ऐसे अब भेड़ें थोड़ा है कि लेके चले जाओ इस इलाके में, डाल दो उसी जगह डाल दो जहां पर उनके घर जला दिए गए थे, उसी जगह डाल दो जहां पर उनको मार दिया गया था. आपने मना से आपने मींस नॉट आपने और कावेरी ने कश्मीरी के मुद्दे को कहाँ जिंदा रखा है? इस मुद्दे को जिंदा कितने आपने आर्टिकल लिखे हैं कश्मीरी पंडितों के घर बेघर होने के? मैं जब आपको I'm saying I'm not actually asking you, I'm just saying that. Correct. मैं आपको आर्टिकल गिना देता मैं अभी थोड़ी देर में. नहीं when I'm saying आपको, it is a matter of saying them you, it is one. कहाँ पर मुद्दा जिंदा रखा है पिछले 30 साल से? इसको पूरे को एक रग के नीचे दबाया जा रहा है कि ये 30 साल से जो 400,000 4 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए थे अपने घरों से, उनका मुद्दा, उनके बारे में किसी को तकलीफ नहीं है.
उनके बारे में किसी को परेशानी नहीं है। आज 4 महीनों से इंटरनेट नहीं है, वो उसके बारे में परेशानी होती है सबको, है? तो देयर इज नो एंड टू इट। वही तन लागे जिस तन जो तन पहनता है। जब आपके अपने किसी रिश्तेदार को पता चलता है कि यार इसके साथ ऐसा हुआ था, तो हमको वो तकलीफ पता है। तो ये तो बिल्कुल ही टॉपिक के बाहर बात है कि इस बारे में कि आप कह रहे हैं कि आप या कावेरी समझते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हम लोग, कोई भी नहीं कह रहा, बहुत बड़ी बात है। और हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। मेरा व्यू है, कावेरी का पता नहीं क्या व्यू है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात होती है आप बुला लेते हैं व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित्स। अरे व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित्स? आज तक लोग बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द जूस, 6 बिलियन जूस व्हिच वर butchered and killed। आज तक लोग बोलते हैं अपने अपने घरों में। So I'm very happy that this has happened। अब वो कश्मीरी पंडित कैसे जाएंगे? वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ना, because कश्मीरी पंडित by nature are not violent। उनमें से किसी ने भी बंदूक नहीं उठाई, उनमें से किसी ने बॉम्ब नहीं बनाए, उनमें से किसी ने नेता को मारा नहीं। Just because they are self-reliant and just because they believe in कि ठीक है यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। वो अलग अलग इलाकों में चले गए। मैं कश्मीरी पंडितों को अमेरिका में मिलता हूँ, मुझे जब भी उनके बारे में बात होती है पूरे हादसे के बारे में, तो सबके तकलीफ सामने नजर आती है। अनुपम आपने कह दी बात, मैं आपको कहूँगा यहाँ पर, आपको क्योंकि आप डाइवर्ट इश्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी कर रहा हूँ, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपने वो रग को पकड़ा है जिस रग से मैं तड़प उठता हूँ जी। हाँ, तो उसी को तड़पाने के लिए क्योंकि मैं भी कश्मीरी पंडित के बारे में पिछले 10 साल से 15 साल से लिखता रहा हूँ, जब भी मौका मेरे को मिलता है। जी। पंडितों में कोई लीडर ही नहीं है जो आकर के सामने एक कंसिस्टेंट लड़ाई लड़े, वो दिखाई देता है। या टेररिस्ट कोई नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। मनोनीत लोग हैं जो पार्लियामेंट में भेजे गए हैं, जो इन लोगों का, जो इन चीजों का मनन करते हैं। I think they are the leaders। No, 370 abolish करना ठीक है, 35A abolish करना ठीक है, but the question is, are you confident that Kashmiri Pandits, the genuine secularism of Kashmir will be restored soon or not? For 65 years, we did not have the confidence that Article 370 will ever go completely. That is a done thing. That is not a done thing. That stems out of the fact that for no government tried to do that. But this piece of the legislature, which is very good, doesn't give you a right to confidence to go back to your own state. Confidence comes out of security, my friend। तो इनसिक्योर कश्मीर है क्या बीबी? घाटी दिस आप इसकी अचीवमेंट को, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी अचीवमेंट को आप कम कर रहे हैं कि यार वो तो हटा दिया, बट तुम्हारा क्या फायदा? हमारा बहुत जहनी तरीके से फायदा है साहब। कभी कभी फायदे फिजिकल नहीं होते हैं, एक मन की शांति के फायदे होते हैं। जब किसी को कोई मारता है और उसको जरूरी नहीं है वो 6 साल तक जो है वो निर्भया की माँ, 7 साल तक निर्भया की माँ जो है झगड़ा करती रही, सोचती रही, उसको हर बार लास्ट के कुछ 6 महीने तक हर पेशी में बदल दिया जाता था, फांसी नहीं लग रही थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं हो रही थी। तो तकलीफ ऐसी चीज। आप लड़ाई करने के लिए आप लीड करिए ना, कौन करेगा इसको लीड? अमित शाह करेंगे, मोदी जी करेंगे। They are not Kashmiris. Doesn't matter. How does it matter? It means how does it matter? Kashmiri You Pandit don't have to be Kashmiri. You have to be an Indian to think about Kashmiris. Correct. But question is local leader ही लड़ते हैं ना चुनाव, तो वहाँ पर क्यों? अमित शाह या मोदी जी लोकल लीडर के लड़े कश्मीरी कोई भी। अमित शाह और मोदी जी ने अच्छा काम किया कि एक एनवायरनमेंट आपके लिए खड़ा कर दिया, एक लेजिस्लेटिव कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसके बाद बाकी लड़ाई तो बाकी लोगों को नेचुरली खुद लड़नी पड़ेगी ना। नहीं, अब ये तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये वो आपको कोई नेता बनना चाहिए कश्मीर का तभी हो गए। हम नेता ही हैं, हम इंडिपेंडेंस आवाज से बात करते हैं। तो आपको लगता है कि एक और मुरली मनोहर जोशी वहां झंडा लेकर के जाए, उसके पीछे बाकी लोग चलेंगे? वो जरूरी नहीं, आप झंडा लेके चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। मैं जरूर, पर आपके दिल में और कावेरी के दिल में कश्मीरी पंडितों मेरे को कश्मीरियों के झंडा लेके चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कश्मीरियों के बात ये आती है ना, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं कश्मीरियों के पीछे चलने के लिए तैयार। यही तो प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तान कश्मीरी चले आगे, सबके पीछे चलते। आप अनुपम संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं। नहीं, ये तो आप तो ये कह रहे हैं कि पंजाबियों का दर्द सिर्फ पंजाबियों को होना चाहिए, तमिलनाडु के लोगों का दर्द सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को होना चाहिए। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं चलता। हम बेशक डाइवर्स लोग हैं, इतनी सारी हमारी 22 में भी
23 अनऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर साथ में तो चलना पड़ेगा ना। नहीं हम तो Anupam ji, some questions, Prabhu ji, lots of questions from the audience also. Yes. दो तीन पूछ लूं. What was the first thing you said to Martin Scorsese? Indra has asked. Oh, Nice question. निशब्द था मैं, because I had met him earlier on Mr. De Niro's birthday. Right. So मैं सोच रहा था इनके साथ फोटो कैसे खिंचाऊं। मेरे जब इन लोगों को मिलता हूं तो मेरे अंदर का जो फैन है वो ज्यादा निकल जाता है। I never can behave as an equal. It's like meeting Dilip साहब और meeting महबूब खान और meeting सत्यजीत रे। When I met सत्यजीत रे, फोटो कैसे खिंचाऊं? Because photo becomes या फोटो ऑटोग्राफ से नहीं, तो मैंने उनके हाथ कहा था कैन आई टेक ए पिक्चर, तो मिस्टर डिनीरो ने कहा ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, वी वर्क टुगेदर इन सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, एंड आई टोल्ड हिम दैट आई हैड, एंड व्हिच इज द ट्रूथ, I had done a research in drama school on mean streets and taxi driver. Acha, wow. So I had told him that that's what I did. So I got very interested in that. He said, so he spoke to me for briefly, but when I met him at the premiere, again मैंने कहा फोटो कैसे खिंचाऊं, तो वही था। बाकी तो these are legends, these are amazing people. Yes. अनुपम, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कश्मीरी पंडित ने ही पूछा है सवाल। उसका नाम है जवाहर राही राणा, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है, व्हाट इज द व्यू ऑफ मिस्टर अनुपम जी अबाउट डिटेंशन ऑफ ऑल फॉर्मर सीएम्स ऑफ J&K who are with the mainstream politics? What is the view? I think this is an issue, so he should ask the Ministry of Home Affairs. As a citizen of Kashmir, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। ये सवाल मुझे बैकफुट पे लाने की कोशिश करने के लिए आपने चुना है ये, क्योंकि आप उन्होंने भेजा, मैं फेसबुक पढ़ देता हूं, मैंने तो पोस्ट नहीं किया फेसबुक पे, उन्होंने फिर पोस्ट किया, मैं पढ़ लिया। सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, बट आई थिंक अब्दुल्ला बाहर निकलते हैं और कश्मीर के बारे में जो बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो आज तक मैंने उनसे कभी ना फारूक अब्दुल्ला साहब से बात सुनी है, जबकि फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे, वो लंदन में बैठे हुए थे जब ये पूरा चल रहा था। 1989 में वो लंदन में थे for 2 years. एक सवाल किसी और को, वो डिफरेंट सवाल है, एक सवाल आया है, मिस्टर खिदवारकर हैं, प्रवीण खिदवारकर, उन्होंने पूछा कि कलाकारों का भविष्य कोरोना के बाद क्या है? हाँ, पूरे बोलो, पूरे कायनात का भविष्य पूरे इस कोरोना के बाद क्या है, ह्यूमैनिटी का भविष्य क्या? मुझे लगता है कि पूरे कोरोना से there will be a positive change in us, because हमको इंसानों को अपनी औकात पता लग गई कि हम एक खुद कण हैं इस प्रकृति के सामने, मदर अर्थ के सामने। मदर अर्थ ने हमने दावा किया कि हमने लोगों ने, वर्ल्ड के लोगों ने, कि हम मंगल तक पहुंचने वाले हैं, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, हमारे पास अणु शस्त्र हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और एक छोटे से वायरस ने हम सबको अपने घरों में बंदी बना दिया, पूरे वर्ल्ड को। सो आई थिंक इसके बाद, इसको कहते हैं कि ये अमृत मंथन है, अमृत मंथन के बाद जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। वी विल हैव अ बेटर वर्ल्ड टू होपफुली लिव, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्कवर्ड दैट। और हमारी इस कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में हमारी जरूरतें क्या हुई? हमारी जरूरतें हैं कि जाके यार राशन ले आए जैसे तैसे, सब्जी ले आए जैसे तैसे, और कहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं? घर वालों के बीच में। So I think this fact will play a very important role post corona. और जहाँ तक actors का सवाल है, yes, it's going to be difficult because it's a community work. People have to come closer to each other. मेरी शूटिंग जुलाई में शुरू होने वाली थी, पर अभी कोई खत नहीं आया, तो शायद वो 70 सितंबर में जाएगी, because we have to work out how to go. अब मैं फोटोग्राफ देख रहा था इन फ्लाइट अटेंडेंट्स के, कि वो पूरे वो एस्ट्रोनॉट्स बन के जो हैं, hazmat suit पहन के। I think we will get used to the new way the world works. Right. देखो, एक मैंने सवाल पूछा, फेसबुक पे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल अभी फिर वो 35 वाला भी आ गया है। एक अपने फेसबुक कृष्ण बहादुर सिंह काना, उन्होंने कहा कि 370 हट गया, जो मैंने भी कहा, 35 भी हट गया, अब मुद्दा है कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का। अनुपम जी पुरजोर तरीके से इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं और लीड क्यों नहीं करते? उनको क्या पता कि मैं पुरजोर तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरजोर तरीके। मुझे डॉक्टर स्वामी का बड़ा अच्छा आइडिया लगा वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ उस दिन मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 2 लाख एक्स आर्मी ऑफिसर्स को वहां पर सेटल कर दिया जाए।
जो 45-46 की साल में आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, जी, उनको एक इंसेंटिव देकर वहां पर कर दिया जाए और उनके आसपास कश्मीरी पंडितों रख दिया जाए, तो शायद ये, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट इट विल चेंज। आई थिंक हम जब आपके बच्चे किसी कलाकार का इंटरव्यू करेंगे, इफ दे डोंट बिकम एनीथिंग एल्स बट जर्नलिस्ट, maybe they will have, by the time they will have a solution. Things don't No, change. are you supporting Subramanian Swami's idea? Yeah, I think it's a great idea. I think instead of then Kashmiri Pandits can follow them after that. Yeah, exactly. I think it's a great idea. You can't make a separate colony and sort of tell them that यहाँ पर रहें और या उन्हीं घरों में चले जाओ जो आज बर्बाद हैं. Also out of the question. Possible ही नहीं. Sir, why don't you reform, this is a question, why don't you reform the film institutes and remove the Tukre gang from spoiling the students there? This is a question that's coming. I think the fact that we have discovered the word Tukre gang, that in itself is an achievement. It's your contribution to a great extent. No, it is their contribution. They are the people who raised the slogans of Bharat Tukre. So they themselves announced who they are. You have a very bad opinion about me, Kaveri. No. It is not the truth at all. I did not discover them. They proved their identity to the whole world. Right. So the fact that we know who they are, then that in itself is an achievement. So every time they will make a statement, we will discover what is their actual motive. उनका रिएक्शन तो यही है ना कि अनुपम खेर जैसे लोग मोदी भक्त गैंग है. कोई बात नहीं सर, मोदी भक्त तो रिएक्शन टुकड़े गैंग का रिएक्शन देखो, कम भक्त होने से बेटर है कोई भी भक्त दूसरा भक्त होना. Anupam ji, have you taken a decision not to act in mainstream films after you started art house films and series? Any reason for this? This question comes from Rahul. Kaveri, you must name the person who has asked the question. Rahul. No, Rahul, that's not true. I have done so much work in Hindi cinema or Indian cinema for that matter, that whenever a new role comes, I feel, is it something new that I have not done? Right. So when I see that, then if it's not something new, I'll rather find my own other things which challenge me as an actor. I would love to. I'm doing a film called Kashmir Files, Prabhu's favorite topic. Kashmir Files. Vivek Agnihotri. तो वो मैं कर रहा हूँ. I'm looking forward to doing that. And we were supposed to shoot in June, but I think now, whenever we get a permission, मैंने एक और स्क्रिप्ट मुझे शाद अली ने सुनाया है. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेडी है. It's very good. I might consider doing it, depending on when am I asked to come back. Go back to New York that way. Right. I would love to. I love working with my people. I have not done Hindi film for a long time over here. But you did One Day, which is on Netflix, and it was trending as well. Yes. How was that experience after a long time? That was very good. I shot that film in Ranchi. It was very good. The film could have been a little better, but I think it was trending for a long time on Netflix, which was very good. I tried to do a different kind of a role. It was the role of a retired judge who basically turns a killer. Right. And I tried to change my body language, etc., etc. Yeah, it was fun. Prabhuji, any last question before I wind it up? No, it's okay because you have answered all my questions. And in my actor, so I want to looking forward to another film. Prabhuji, मेरी तारीफ में 2 शब्द बोलो जाने से पहले. You have been my favorite actor. That's what I said. Thank you. I still watch you and I'm looking for कुछ भी हो सकता है जिंदगी में. अच्छा, मेरा जो प्ले है वो आ रहा है 7 तारीख को. एक बार आ रहा है कोई आपका. वो 7 तारीख को I am putting it on my website. The Anupam. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. I think that's a play which deals with my failures and my never giving up attitude. So people in this time of lockdown can see that play. It will be wonderful. Thank you. Anupam, it used to be said in the 1990s, Mr. Chawla, that Hindi films could not be made without 2 things, raw stock and Anupam Kher. Yes. So it seems that the best entertainment in the world currently cannot also be made without Anupam Kher. And the consistent factor is the baldy Anupam Kher. Thank you so much, Kaveri. It was a pleasure talking to you. It was such a pleasure. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Thank you. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho.